Assalamu alaikum, dear students. We will start our next lecture, which is regarding the properties of enzymes. Enzymes की properties को बेटे स्टडी करते हैं. इससे पहले दो टर्म्स हैं बेटे. एक टर्म है एपोएंजाइम और दूसरी टर्म है होलोएंजाइम. Apoenzyme and holoenzymes. Apoenzyme is the enzyme when the cofactor or prosthetic group is removed the enzyme when the cofactor or prosthetic group is removed from it, then it is called the apoenzyme. जब एंजाइम से आप कोफैक्टर रिमूव कर लेते हैं या जब एंजाइम के साथ कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो अटैच नहीं होता, तो देन इट इज टर्म्ड एज ए एपोएंजाइम. The condition of enzyme when the cofactor or the prosthetic group is removed from it, then it is called apoenzyme. It is the inactive form of enzyme. It is the inactive form of enzyme. ये एंजाइम की इनएक्टिव शक्ल होती है. इस वक्त जो एंजाइम है वो एक्टिव शक्ल में नहीं होता, यानी कि वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के काबिल नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसके साथ जो कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है बेटे वो रिमूव्ड होता है, वो अटैच नहीं होता. नाउ द holoenzyme is a complete enzyme when the cofactor or prosthetic group is attached when the cofactor or the prosthetic group is attached with the enzyme, then it is called as the holoenzyme. फिर उसको बेटे होलोएंजाइम कहते हैं. तो दो टर्म्स जो कि अक्सर शार्ट क्वेश्चंस के अंदर आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपोएंजाइम एंड होलोएंजाइम. एपोएंजाइम में कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो रिमूव्ड होता है, वो अटैच नहीं होता, और होलोएंजाइम के साथ कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है वो अटैच्ड होता है. एंड इट इज द एक्टिव और द फंक्शनल फॉर्म ऑफ एंजाइम. इट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम. ये एंजाइम की एक्टिव फॉर्म होती है, यानी कि इस वक्त एंजाइम जो है वो क्या होता है, फंक्शनल होता है. इट कैरी आउट इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी. नाउ वी कम टुवर्ड आवर मेन लेक्चर व्हिच इज रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम. ऑल ऑफ द एंजाइम्स आर, नंबर वन, ऑल ऑफ द एंजाइम आर globular protein. Most of the enzymes are globular protein in nature. Most of the enzymes are globular protein in nature, except the some like ribozyme, which is nucleic acid and still works as a enzyme. ज्यादातर जो एंजाइम हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, सवाए चंद के, जिसकी एक एग्जांपल मैंने यहां पे कोट की है, वो राइबोजाइम की है, which is the RNA, which is a nucleic acid and works as a enzyme. But most of them are globular protein in nature. Second, the enzymes speed up the chemical reactions. Enzymes speed up the chemical reactions. जो enzymes हैं वो chemical reactions को speed up करते हैं, तेज करते हैं. They are not used itself in the chemical reactions. वो खुद इस्तेमाल नहीं होते. They are not used itself. They don't use themselves. इनके खुद से इस्तेमाल नहीं होते,
उनके enzymes are not used in the chemical reactions. The enzymes are not consumed in the chemical reactions. Enzymes just speed up the chemical reactions. Enzymes जो है वो सिर्फ chemical reactions को speed up करते हैं, तेज करते हैं. Thirdly, the enzymes do not start any new chemical reactions. Enzymes do not start any new chemical reaction. Enzyme कोई नया chemical reaction जो है वो शुरू नहीं करते. Enzymes don't initiate any chemical reaction. Enzyme कोई नया reaction start नहीं करते, बल्कि enzymes जो हैं already जो occurring reactions होते हैं, पहले से जो reactions perform हो रहे होते हैं, they just speed up them. वो उनको सिर्फ क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, वो सिर्फ उनको तेज करते हैं, उनकी स्पीड में इजाफा करते हैं. फोर्थ पॉइंट में द एंजाइम्स आर नीडेड in very small quantity. The enzymes are needed in very small quantity. Enzymes जो है वो इंतहाई कम मिकदार में चाहिए होते हैं. इसकी एक वजह यह है कि the enzymes are not used in the chemical reactions. They are gathered, they are collected as it is at the end of the reaction. Reaction के end के ऊपर जो enzymes हैं वो आपको रिकवर हालत में मिल जाते हैं, वो आपको as it is हालत में अवेलेबल होते हैं. That's why they are used in the small quantity. कि जो एंजाइम की थोड़ी मिकदार होती है वो बहुत सारे रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए क्या होती है बेटे, काफी होती है. बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड इटसेल्फ इन द रिएक्शन, वो खुद रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते हैं. दे जस्ट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस. ये सिर्फ केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने में किरदार अदा करते हैं. इसके अलावा जो एंजाइम है, some of the enzymes needed cofactors for their proper functioning. Some of the enzymes needed cofactors for their proper functioning. कुछ enzymes को कोफैक्टर की जरूरत होती है. Some of the enzymes needed cofactors for their proper functioning. कुछ enzymes को अपना काम करने के लिए, अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए they needs cofactors. उनको cofactors की जरूरत पड़ती है. cofactors के बगैर वो क्या करते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं. इसके अलावा जो enzymes होते हैं they are very sensitive. Enzymes are very sensitive to change in the pH and temperature. The enzymes are very sensitive to change in the pH and temperature. जो enzymes हैं वो इंतहाई सेंसिटिव होते हैं in the change in temperature and the pH. इनके if you change the pH or the temperature of the medium where the enzymes are functioning, where the enzymes are working, तो then their functions get disturbed. तो फिर उनके काम जो है वो क्या हो जाता है बेटे, डिस्टर्ब हो जाता है. अगर आप जिस मीडियम में एंजाइम काम कर रहे होते हैं, अगर आप वो मीडियम चेंज कर दें, उसमें तब्दीली लेके आए, इनके पीएच जो है वो क्या हो, जो ऑप्टिमम पीएच है उसको तब्दील कर दें, तो फिर क्या होगा, एंजाइम की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है. इसी तरह से अगर आप एंजाइम्स की जो मैक्सिमम जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यूजुअली तौर पे इंसान के अंदर एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ये उसके ऊपर सबसे बेस्ट काम करते हैं. तो अगर आप उसको चेंज कर दें तो द फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स गेट डिस्टर्ब. इसके अलावा नेक्स्ट जो है
इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं दे वर्क बेस्ट इन द एक्वस मीडियम। जो एंजाइम है वो एक्वस मीडियम के अंदर बेहतरीन तौर पे काम करते हैं। एंजाइम्स के लिए जो आइडियल सिस्टम होता है वर्क करने के लिए, दैट इज एक्वस मीडियम। एंजाइम्स वर्क वेरी बेस्ट एट इट्स ऑप्टिमम रेट इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम के अंदर वो क्या करते हैं, बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम्स। ये डे स्टूडेंट्स एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी शैल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। अगला जो टॉपिक है जो कि एंजाइम्स की जो फैक्टर्स हैं, द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट्स द एंजाइम्स, उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और फिर एंजाइम्स की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।